So, good evening, friends. Jai Hind to all of you. So, today we have come out with a very important video. As you're already aware, the UPSC Civil Services Examination, the notification has already been released on the 14th of February, and the exam is scheduled to be held on 26th of May. And those of you who intend to appear in this year's examination, they must fasten their seatbelts, they must get ready because now the countdown has already begun. From now onwards, every day wasted will be an opportunity lost. In this video, as I have been receiving a lot of queries from you students about how to approach the exam in the last 90 days, what should be the strategy, what books to read, what timetable to adopt, all these things we will be trying to analyze and discuss and come out at a very feasible approach so that कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें. देखिए, बिफोर वी स्टार्ट, as I've been providing this mentorship to the students. So the idea is to reach out to as many students as possible. So those of you who intend to write the exam this year and those who intend to write the exam in the coming years, maybe 2025 or your state PCS examinations as well, feel free to ask your doubts and queries. Our team will answer your queries and we will revert back to you accordingly. So the idea is to empower the youth, empower the young boys and girls out there, ताकि वो अपने लक्ष्य की ओर एक अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकें. जो डाउट्स और जो उनके मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी हम बस्ट करेंगे. अप्रोच यही है कि किस तरह से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें. ओके, सो सी नोटिफिकेशन जैसे हमने बात की ऑलरेडी रिलीज़ कर दी गई है. 14 फरवरी को एग्ज़ाम आपका 26 मई को होना है. 26th of May you have the exam. ठीक है, and 5th March is the last date for the examination. You just mark this day, 5th of March. This is very important कि आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, आपको अभी ही फॉर्म भर देना है. समटाइम्स ड्यू टू सर्वर इश्यूज आई डोंट वांट यू टू miss out on the opportunity to appear in the examination. So just read the notification clearly, read the notification and anything that is there. This year there has been something with respect to the quality and the recency of the pictures. So ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. And so don't wait till the last day. So let's see. Now इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम को अप्रोच करना है. मेरी तैयारी हुई नहीं है, मैंने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो वेदर शुड आई अपीयर इन द एग्जामिनेशन और नॉट. सो दिस वीडियो विल बी स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड्स दोज एस्पिरेंट्स who are appearing in this year's civil services examination. Okay, for those who intend to write in successive years, they can approach us and we will try to address their queries as well. तो देखिए, अगले साल भी अगर आप जैसे सोच रहे हैं ना कि अभी एग्ज़ाम तैयारी नहीं हुई है आपकी और आप सोच रहे हैं कि अटैम्प्ट को ड्रॉप करने का, तो डोंट डू दैट बिकॉज नेक्स्ट ईयर ऑल्सो सिमिलर सिचुएशन विल हैपन. आई वुड रादर एडवाइज टू यूज़ दीज 3 months इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर. बहुत ही आप अच्छे तरीके से अप्रोच करें और मतलब एक प्लान तरीके से अगर आप चलेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप क्यों इस एग्ज़ाम को क्रैक ना कर पाएँ. तो मूविंग फर्दर, जैसे अगर हम बात करें कि अप्रोच कैसे करना है हमें एग्ज़ाम को, अगले जो हमारे पास बचे हैं जो 90 डेज़ है आपके पास. सो क्या 90 दिन में एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है? तो उसका आंसर एकदम यस है, एकदम क्रैक किया जा सकता है. सो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू पुट इन दोज. आपको अपने वो 10 से 12 घंटे आपको देने होंगे डेली. 10 to 12 hours you will have to devote every day. एंड टारगेट आपका रहेगा, फोकस आपने कहाँ करना है सबसे ज़्यादा, आपके फोकस एरियाज़ रहेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट तो बेसिक बुक्स आपने जो पढ़नी है उन पे स्टिक करना है. एक हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे. देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स एंड बिकॉज ये
एक ऐसा एक डोमेन है जहाँ पे एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, तो हम इसको भी एड्रेस करेंगे। और जो मेरा एक सजेशन रहेगा, एटलीस्ट आप 3 रिविजन्स तो अब से लेके एग्ज़ाम तक ज़रूर करें। वो कैसे करना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आपने एनालाइज करना है अच्छे से, जिससे आपको एक बेटर आइडिया होगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको उसको किस तरह से आगे अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरह से अप्रोच करना है। जैसे हमने देखा था कि जो 2023 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, सो दैट्स वाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। तो उसमें आपको बस ये करना है कि एक बार आपको वो प्रीवियस पेपर उठाना है, आपको एनालाइज करना है कि आप क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपका उसको लेके एनालाइज द क्वेश्चंस देयर, यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चंस प्रीलिम्स पेपर। In this video, we will be talking only with respect to the GS paper. Those who have queries with respect to CSAT, we will also come up with that. So analyze the prelims paper of particularly the previous, because 2017 के बाद से 2017 onwards, the level of the paper has gone up. So we have to focus more on the पेपर्स ऑन 2017 ऑनवर्ड्स। तो उसमें किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे पहले 1 वर्ड आंसर भी आते थे, नाउ आपको कुछ इस बार असर्शन रीज़न भी पूछा गया है। 2023 का एग्ज़ाम था, उसमें उन्होंने आपको जैसे एम्स के एग्ज़ाम में आता है असर्शन एंड रीज़न, कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो वेदर स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैव आल्सो हैव बीन आस्क्ड। तो माय आइडिया वाज टू impress upon you the importance of the previous year questions। तो आपने 2 चीज़ें जो आपको एकदम से फोकस करनी है। नंबर 1 तो आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। एक कॉपी आप लेके अपने स्टडी टेबल है जहाँ भी आप पढ़ते हैं सामने रख लीजिए और उसको आप थोड़ा सा माइंड में रखना है अपने सिलेबस को। दूसरा, आपने जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखिए आप मॉक टेस्ट लगाएं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये 2 चीज़ें हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को इग्नोर ना करें, उनको बैठ के एकदम से बढ़िया तरीके से एनालाइज करें, जिससे आपको एग्ज़ाम की डिमांड का समझ आएगा। अदरवाइज़ आप कहते हैं ना, यू नीड एन एंकर। फॉर एग्जांपल, अ शिप इज़ सेलिंग इन द ओशन, इट डजंट नो विच वे टू गो, सो इट विल गो एस्ट्रे, इट विल गेट कॉट अप इन द स्टॉर्म। तो आपको स्टॉर्म में ना फंसना है, क्योंकि अभी देखिए जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा तो आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको थोड़ा सा मतलब यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड कि यार ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। तो सब कुछ नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि बुक लिस्ट किस तरह से आपको करनी है, वो किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जो अपना टाइम बचा है हमारे पास अभी तकरीबन आज जैसे आज 27 फरवरी है। ठीक है, मैं एग्ज़ाम आपका 26 मई को है। सो यू रफली हैव अराउंड 90 डेज़। सो अभी तो देखिए एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज एक भी दिन अगर जो इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1 डे वेस्टेड इज़ गोना बी क्रूशल, कैन कॉस्ट यू। तो आप अपना टाइम जो बचा उसको डिवाइड करना है और प्लानिंग कैसे करनी है। देखिए एक स्लॉट तो आप ये रख लीजिए पहले महीने का, 30 डेज़ के आप स्लॉट बना लीजिए। 30 days 3 slots। If you want to take notes of this, you can just plan accordingly, उसको अपने हिसाब से टेलर भी कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक तो मंथली अपना प्लान बनाना है, वीकली बनाना है और डेली प्लान भी बनाना है। एक चीज़ जो टाइम टेबल के हवाले से जो बात करते हैं बच्चे, वो मैं थोड़ा सा उनको एक चीज़ थोड़ी सी समझाना चाहूँगा जो मैं खुद भी प्रॉब्लम फेस करी है। आपको अपना ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाना है जैसे कुछ लोग टाइम टेबल बना लेते हैं 7 to 8, मैं नहीं, 7 to 8 फॉर एग्जांपल बोलते हैं 7 to 8 और 7 to 9, देन 10 to 12 मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट पी पढ़ना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दिस टाइप ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो असेसमेंट काइंड ऑफ पुट्स टू मच प्रेशर ऑन यू।
व्हाट आई वुड रादर एडवाइज यू इज़, जैसे आप अपना पहले एक मंथली प्लान बनाएं, मे का मंथली प्लान, ठीक है। आपने मंथली प्लान बनाया, उसमें आपने डिसाइड कर लिया इस महीने मैंने हिस्ट्री ख़त्म करनी है या पॉलिटी ख़त्म करनी है, देन आई हैव टू फिनिश इकोनॉमी एंड जोग्राफ़ी। तो समझ लीजिए आपने ये 4 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने का आपने टारगेट रखा एक महीने का, 1 मंथ का। जैसे कमिंग 1 मंथ की हम बात कर लेते हैं, फ्रॉम टुडे दैट इज़ 27 Feb टू 31 मार्च, ठीक है। ये आपके पास तकरीबन 30-35 डेज़ होंगे। इसमें अब आपने कैसे करना है इसको, अब देखिए, एक आपको स्टैटिक सब्जेक्ट लेना है और साथ में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। आप बस 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा एक दिन में ना पढ़ें। सो योर डेली ब्रेकअप, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ योर डेली शेड्यूल, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रीड अ GS component which could be history, polity, economy, geography, anything. Second, you take up current affairs. And third, you can take up CSAT को आप एटलीस्ट 1 घंटा दे दें, डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट लेवल। आपका CSAT कितना स्ट्रांग है या वीक है, उस हिसाब से आप 1 घंटा अभी दे दीजिए इसको। तो ये आपने 3 कंपोनेंट्स आपने डेली लेने हैं। ये 2 से 2.5 घंटा आप पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स को, 1 घंटा इसको, और एटलीस्ट 6 to 6.5 to 7 आवर्स आपको GS पढ़ना है। तो ये आपका ब्रेकअप होगा। अभी आपने इसको माइक्रो मैनेज नहीं करना है, आपको डेली का, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टिपिकल डे कैसे हो सकता है, डेली का आप क्या क्या कर सकते हैं। आप ये बना सकते हैं कि आज मैंने क्या करना है, आज मैंने पॉलिटी अगर मैंने स्टार्ट की है, इफ़ आई स्टार्टेड पॉलिटी, तो टुडे आई विल फिनिश दीज 5 चैप्टर्स ऑफ पॉलिटी। ये आपका डेली हो गया। फिर अगर आपने वीकली बात करनी है, वीकली आप अपना एक टारगेट रख लें कि मैंने पॉलिटी के इतने चैप्टर्स करने हैं या मेरा 60% मैंने पॉलिटी ख़त्म करनी है। तो उसमें आपको फिर ये नहीं है कि मैंने 7 से 8 पढ़ना है या 8 से 9 पढ़ना है, आपको बस पढ़ना है। फिर तो आपको वो टारगेट्स अपने कंप्लीट करने हैं इस तरह से, ठीक है। साथ में आप उसको जैसे 2-3 घंटा पॉलिटी पढ़ लिया, देन यू कैन रीड 1 आवर ऑफ योर करंट, ठीक है। सोर्सेज की बात हम आगे करेंगे। अभी 1 आवर ऑफ करंट पढ़ लिया, बीच में थोड़ा मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए CSAT लगा लिया, शाम को थोड़ा वॉक करने चले गए। सो दिस इज़ हाउ यू शुड प्लान। और डेली अगर आप इस वक्त अभी अगर आई वुड एडवाइज, आप नींद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपने। 8 आवर्स ऑफ स्लीप, सोना बहुत ज़रूरी है। आप 8 घंटा सोए और उसके बाद जो आपके पास 16 घंटे बचते हैं ना, देखिए इस चीज़ का मैं थोड़ा स्पेसिफिकली बताता हूँ। यू हैव टू स्लीप फॉर 8 आवर्स, डू स्लीप। नींद को कम नहीं करना है, नींद को एकदम कम नहीं करना है आपने 8 घंटे सोना ही सोना है। लेकिन जो 16 घंटे बच जाएंगे उसमें अगर आपका जो एक्टिविटीज़ हैं, खाना पीना, नहाना धोना, वो सब, वो मिला के आप 4 से 5 घंटे उसको दे दीजिए, ठीक है। 4 से 5 घंटे मैंने ये बहुत ज़्यादा बोल दिया है। और इसके बाद आप 1 आवर आप दे दीजिए खुद को एक्सरसाइज, वॉक, मेडिटेशन। वो ये 6 घंटे भी लगा लीजिए, आपके पास फिर भी ये 10 घंटे बचते हैं। तो ये 10 घंटे, इसमें आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, नॉट इवन 1, डोंट वेस्ट इवन 1 मिनट, ठीक है। इसमें आपने पढ़ना कैसे, इसमें आपने अपना फ़ोन साइलेंट पे रख देना है या आपने एयरप्लेन मोड पे डाल देना। देखिए जब पढ़ना है ना, तो आपने फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। एक ऐप है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, YPT करके है, योल पुमटा करके, आई यूज्ड इट। इसमें क्या होता है, आप अपना डेली का ना अपना वो ट्रैक कर सकते हो प्रोग्रेस। तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना घंटे आज पढ़ा है, कल कितना पढ़ा है। तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं फ्रेंड्स का, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। मैं तो पर्सनली अकेले पढ़ना प्रेफर करता था, तो आई डोंट स्टडी इन ग्रुप्स। हर किसी का अपना अपना हिसाब है। आई स्टडीड विद माई ओन कंपनी, बिकॉज समटाइम्स हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग है। तो आप ये एक अपना डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे तो आपको लगेगा कि यार आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, कल मैंने 6 ही पढ़ा था। फिर अगले दिन आप उसको 10 लेके जाइए। लेकिन मिनिमम, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मिनिमम आप चाहे बुखार हो, सर्दी ज़ुकाम, जो मर्जी हो, आपको 6 घंटे से नीचे नहीं जाना, अनलेस योर हेल्थ इज़ रियली बैड।
यू शुड टेक रेस्ट, डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ, बट मिनिमम आपको 6 घंटे से नीचे जाएंगे तो आप अगले दिन उसको कॉम्पनसेट करना है। आपका डेली और आपका वीकली जो टारगेट में मुझे लगता है आपको 80 आवर आपके वीक्स होने चाहिए। यू शुड बी क्लॉकिंग 80 आवर्स पर वीक। तो आप डेली टारगेट बनाएं, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी है, एक एक घंटे की प्लानिंग नहीं करनी, उससे स्ट्रेस आएगा। आप मंथली प्लानिंग करिए और वीकली प्लानिंग करिए और डेली प्लानिंग करिए और असेस कीजिए। अगर आपका 75 to 80%, अगर 75 to 80% भी आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो यू शुड गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक, दिस मीन्स यू हैव सक्सीडेड। ओके, ये चीज़ है। अभी थोड़ा सा जो कुछ चीज़ें जो मैं मानता हूँ जो नॉन नेगोशिएबल है इस फेज़ में, सबसे पहला तो देखिए डिसिप्लिन आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस फेज़ में। आप नहीं इनडिसिप्लिन रह के ये सोचें कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, क्योंकि 90 दिन ही बचे हैं आपके पास, ये बहुत कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। जिन लोगों ने थोड़ा पहले से एक बार बेसिक बुक्स पढ़ रखी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। जिन्होंने अभी शुरुआत की है उनको भी डिसहार्टन नहीं होना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है। जिन्होंने थोड़ा शुरू किया है, थोड़ा सा अभी बेसिक बुक्स का आइडिया ले रहे हैं, तो उनको भी मतलब डिसहार्टन नहीं होना है, एक्स्ट्रा एफर्ट मार के आप मेकअप कर सकते हो। ऑल्दो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू कंप्लीट द इंटायर सिलेबस, जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, आपको मेन तो चीज़ में डिसिप्लिन की बात जैसे मैंने पहले कर दी, और एक्सरसाइज और मेडिटेशन की बात भी मैंने आपसे कर चुका हूँ। ये चीज़ें आपने, ये 2 चीज़ें भी ज़रूरी हैं आपके साथ। माइंडफुलनेस, आप जब सोते हैं शाम को, सोने से पहले आधा घंटा पहले यू क्लोज योर बुक्स, 1 घंटा पहले क्लोज योर बुक्स, सिट फॉर योर सेल्फ, एनालाइज आपने आज क्या किया है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना आपने टारगेट्स अचीव किए हैं, और अगले दिन के टारगेट्स आपने क्या करना है, सेट द टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट डे द नाइट बिफोर। ठीक है, सोने से पहले अगले दिन का टारगेट रेडी होना चाहिए, क्योंकि उससे आप फिर एक ऊर्जा से, आप एक फ्रेश एनर्जी के साथ उठोगे कि आज का मेरा टारगेट है, वो मुझे कंप्लीट करना है। एंड रिवार्ड योर सेल्फ व्हेन यू अचीव द टारगेट। एंड ऑब्वियसली पनिशमेंट भी देनी है। पनिशमेंट क्या है कि एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है, पनिशमेंट भी अपने फ़ायदे के लिए करनी है। और एक और चीज़, कभी नहीं पढ़ा जा रहा है ना, कभी नहीं पढ़ा जा रहा है तो खुद को कर्स नहीं करना है। डोंट कर्स योर सेल्फ। अपने आप को कभी कुछ गलत नहीं बोलना है, कुछ गलत नहीं बोलना है। ठीक है, पढ़ाई नहीं हुई कोई बात नहीं, उससे अगर आप उसके बारे में सोच के अपने आप को और नेगेटिव फीडबैक दोगे, वो आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा। सी, द डे दैट इज़ गॉन, नेक्स्ट डे इज़ अ फ्रेश डे, अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज योर पोटेंशियल. So what is the idea before, I mean, little bit of philosophical conception here is that the idea of life is to improve the, the graph for our existence, how much we are able to amplify our existence. जो हमें potential है, हम उसको कितना best utilize कर रहे हैं. तो खुद को self कर्ज करके there is not going to be any benefit. हाँ, conscious रहना है कि हाँ आज मैंने अच्छा नहीं किया, बस उतना ही रखना है, उस चीज़ को अपने दिमाग पे हावी नहीं होना है. नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट, फॉरगेट व्हाट यू डिड yesterday you studied good, you studied bad, that is gone. every day is a fresh opportunity. अगर आपने कल अच्छा पढ़ा था तो ज़रूरी नहीं है कि आज भी अच्छा ही पढ़ोगे. आज एक नया दिन है, नई शुरुआत है. डिसिप्लिन इज समटाइम्स बोरिंग. ओके, डिसिप्लिन इज बोरिंग एंड यू हैव टू डू द बोरिंग थिंग्स. नेक्स्ट 3 महीने के लिए आपको बस अपने सर में पानी डाल के बैठ जाओ, कट ऑफ कर दो सोशल सर्कल्स को. बस अपने एक या दो क्लोज फ्रेंड्स जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, जो लोग आपको पुट डाउन करते हैं, नेगेटिव कमेंट्री आपको सुनने को मिलती है, दैट इज़ अ टोटल नो. जस्ट लर्न टू से नो टू थिंग्स एंड पीपल एंड सिचुएशंस दैट सक योर एनर्जी, दैट विशिएट योर टेम्पो एंड अलाइन योर सेल्फ विद द गोल. कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था आपको कि टेक वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, पुट एवरीथिंग इनटू दैट आइडिया, देन सक्सेस इज गारंटीड. एंड वन मोर थिंग, सक्सेस इज नेवर इन द डेस्टिनेशन. हमें किसी टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करनी है, हमने क्या करना है, अपना प्रोसेस ठीक रखना है. यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस, ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस.
डेस्टिनेशन इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। डेस्टिनेशन इज़ नॉट द व्हाट वी एस्पायर फॉर। जर्नी में जो हम सीखते हैं, व्हाट वी लर्न एंड व्हाट वी बिकम बेटर पर्सन, दैट इज़ द रिवॉर्ड। वो आपका रिवॉर्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम हाँ, दो चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ, एक एटलस और एक आपका सिलेबस आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए। सिलेबस आपको डेली देखना है, एटलस आपको डेली 15 से 20 मिनट आपको एटलस पढ़नी है, या आधा घंटा दे दीजिए। उसमें आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के जो चीज़ें हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, डिफरेंट जो गल्फ्स हैं, सीज़ हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एटलस की। अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए आपको किस टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों की मदद कर सकूँ इसमें। और जो भी आपके स्पेसिफिक डाउट है, कोई आपको लगता है कि इस वीडियो में वो डाउट एड्रेस नहीं हुआ है, तो आप वो वीडियो के कमेंट्स में आप मेंशन कीजिए उन डाउट्स को। वी विल कोलेट योर डाउट्स इकट्ठे करके, वी विल मेक अनदर वीडियो वेयर वी विल ट्राई टू एड्रेस दोज डाउट्स। एंड इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरीज, यू वांट टू रीच आउट टू मी, यू वांट टू टॉक टू मी, वो भी आप टेलीग्राम पे आप टीम को मैसेज कीजिए, वो हम वी कैन प्लान अ कोऑर्डिनेट दैट। द आइडिया इज़ टू बी डिसिप्लिन, टू बी फोकस, टू बी डेडिकेटेड, ठीक है। तो एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी हम थोड़ा सिलेबस पे आएंगे, कि एक सब्जेक्ट के लिए बस एक किताब रखनी है, उसको डिसाइड करें और उस पर स्टिक कर जाएं, ठीक है। जो पब्लिक में चैटर चलता है सोशल मीडिया पे, ये किताब भी पढ़ लो, वो किताब भी पढ़ लो, उसको अवॉइड करना है, एक किताब से स्टिक कर जाना है अपना, ठीक है। और देखिए अभी सिलेबस क्या है आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको एनालाइज कीजिए। आई थिंक यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ, इस पर हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। आप देख लीजिए, जैसे हिस्ट्री में पिछले साल 11 सवाल आए थे, पॉलिटी से और गवर्नेंस से 21 सवाल आए थे 2022 में। अब 23 वाला एनालिसिस नहीं है इसमें, 23 वाला आप देखिएगा। तो आइडिया क्या है कि आपको एक चीज़ क्या ध्यान है इसमें आ रही है, कि इसको मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस में फ़ायदा रहेगा, ठीक है। हाँ, तो आपको एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है कि यूपीएससी क्या करता है। यूपीएससी किसी एक सब्जेक्ट पे, इट इज़ नॉट गोइंग टू फोकस ऑन ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस नहीं होता है, हर साल डिफरेंट सब्जेक्ट, कभी पॉलिटी पे ध्यान दे दिया, ठीक है, कभी आपका ज्योग्राफी पे आ गया, चेंज होता रहता है ट्रेंड। तो आपको ना ये नहीं मार्केट ट्रेंड्स में बिलीव करना कि यार एक सब्जेक्ट पढ़ के मेरे को इस पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको यू हैव टू गेट अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, विद फोकस ऑन 4-5 सब्जेक्ट दैट आई मेंशन्ड अर्लियर। तो उन पे थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। जैसे कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे आपने फोकस देना है, एक तो हो गया आपका पॉलिटी, इस पे तो मैक्सिमम लक्ष्मीकांत की एक किताब है, सबको पता रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, फिर इकोनॉमी, ज्योग्राफी, यहाँ पे आपका 70 से 80 सवाल आते हैं। और यहाँ पे अगर आप 85-90-95% एक्यूरेसी रखेंगे तो आपका क्या होगा, थोड़ा कट ऑफ क्लियर करने में, देखिए कट ऑफ जैसे प्रीवियस ईयर्स में 88 गया है एक साल 87 भी गया है, इस साल शायद अराउंड 80 गया होगा 2023 में, ठीक है, 80 पॉइंट समथिंग वॉट एवर। तो अगर आपने इस 70-80 में से अगर आपने 50-55 मार्क्स आप यहीं पे ला रहे हो, 50 to 55 मार्क्स, तो यू हैव वन हाफ योर बैटल। तो आपने बस इन एरियाज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। तो अगर हम देखिए अब थोड़ा बुक लिस्ट की, मैं आपसे थोड़ी सी बुक लिस्ट की बात करूँ अगर, तो सबसे पहले चीज़ जल्दी से मैं बता दूंगा, वी विल कंक्लूड दिस वीडियो शॉर्टली एंड विल कम अप विद मोर वीडियो। पॉलिटी के लिए आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही किताब पढ़नी है, लक्ष्मीकांत। ये लक्ष्मीकांत की किताब है, ये बाइबल है पॉलिटी के लिए। तो इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपने, कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका आ गया मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी सिर्फ एक किताब पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की किताब है बाय राजीव अय्यर, ठीक है। तो ये आपने फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इफ़ यू कम फर्दर, तो जैसे इकोनॉमी एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। इकोनॉमी के लिए 2-3 सोर्सेज हैं, एक तो रमेश सिंह की किताब है,
रमेश सिंह। मैंने पर्सनली मृणाल सर के जो प्रिंटेड नोट्स हैं, ऑल्दो दे आर वेरी लेंदी, तो आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। प्लस मृणाल सर की वीडियोस है, मृणाल सर की वीडियोस भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं फॉर क्लैरिटी। ठीक है, इसके साथ अगर आपका जो हम चौथा सब्जेक्ट की बात करें, ज्योग्राफी, जनरली लोग तो कहते हैं कि 6 to 12, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिसेंट है तो आप 11th-12th की NCERTs आती हैं, 4 NCERTs हैं, 4 NCERTs ऑफ 11th and 12th, वो आपने पढ़ लेनी है। प्लस एक बुक आती है GC लियोंग, GC लियोंग का चैप्टर 1 पढ़ना है सिर्फ आपने, बाकी आप जस्ट ग्लांस कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका ये 3-4 सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह या मृणाल, और ज्योग्राफी के लिए आपकी 11th-12th की NCERT GC लियोंग। और इसके साथ आपने एटलस ज़रूर देखनी है मैप एंट्रीज के लिए, क्योंकि मैप पूछता रहता है। जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में भी कोई नई एंट्री चीज़ आती है, जैसे राफा बॉर्डर कहाँ पे अभी न्यूज़ चल रही है गाज़ा पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेके, तो राफा बॉर्डर कहाँ पे है, गोलन हाइट्स कहाँ पे है, जैसे लुहांस एंड डोनेट्स, वो जो यूक्रेन लुहांस जो रीजन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। तो इसके बाद अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट टॉपिक है जिसमें काफ़ी सवाल आते हैं। तो ये जनरली शंकर IAS की किताब है, शंकर IAS, उसको भी आपने सेलेक्टिवली पढ़ना है। जो कन्वेंशंस वगैरह उसके एंड में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना है। थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। अगर आप चाहते हैं हम इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट पे एक एक वीडियोस बनाएं, हम किस तरह से हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करना है फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, तो वो भी हम प्लान कर लेंगे, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं उसके बाद। तो उसके बाद अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री की आपको सिर्फ एक ही किताब पढ़नी है, क्लास 11th की RS शर्मा की NCERT, क्लास 11th NCERT रिटन बाय RS शर्मा सर। सो ये आपकी किताब है। और मिडीवल के लिए कुछ लोग 11th की NCERT भी पढ़ते हैं, बट आई जनरली वुड सजेस्ट कि आपको 7th की NCERT एक आती है, ओल्ड NCERT, आप उसको रेफ़र करें, तो दैट विल ऑल्सो मोर देन सफाइस। ठीक है, ये आपका क्या क्या कवर कर लिया हमने, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर। अभी कल्चर, हाँ कल्चर आपका रह गया। कल्चर के लिए जस्ट रीड दिस वन बुक, नितिन संघानिया सर की किताब है, और कुछ ज़्यादा इधर उधर हाथ पाँव नहीं मारना है। ये एक किताब है, उसको आपने पढ़ लेना है। एंड इसके साथ अगर थोड़ा सा हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जहाँ तक रुझान है तो इट इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो जो करंट ट्रेंड्स हैं जैसे गगनयान, चंद्रयान, ये जो थोड़ा सा आप बेसिक्स देख लीजिए, कोई भी एक कंपाइलेशन कहीं से उठा लीजिए, ये ऑनलाइन वीडियोस आपको मिल जाती हैं। हम भी कोशिश करेंगे अगर साइंस एंड टेक पे कुछ वीडियोस बनाने की, तो इसके लिए आप बेसिक कोई 9th या 10th की NCERT जस्ट रेफ़र कर सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा नहीं जाना, ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं, मोस्टली इसको हमने करंट से करना है। ठीक है, सेम गोज़ फॉर अगर हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स में इफ़ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स, तो इसमें भी मोस्टली आपको करंट ओरिएंटेड एक अप्रोच लेके चलना है। ठीक है, यू हैव टू गो एज पर दी व्हाट इज़ हैपनिंग करंटली इन द वर्ल्ड एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो आपको थोड़ा सा अप्रोच करना है। एंड फाइनली करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि हर सब्जेक्ट के लिए एक किताब, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बस एक सोर्स पढ़ना है। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, पर मैंने जनरली विजन की ही मतलब मेंशन रेफ़र किए हैं, मोस्टली लोग वही करते हैं, विजन IAS की मंथली। और सिंस अभी 3 महीने हैं तो इनका जो PT कंपाइलेशन आता है PT 365, आप उसी को रेफ़र कीजिए। जनरली इसमें से इतना पढ़ के आई थिंक 5 से 10 सवाल ही आएंगे, 5 to 10 क्वेश्चंस, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आप ज़्यादा फोकस करंट अफेयर्स की जो PT 365 है, आपको सबसे ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ये तो आपको एकदम से वर्ड टू वर्ड पढ़ लीजिए। शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं वो भी बना दें, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है PT 365 को, वो भी अगर वीडियो चाहते हैं तो दैट ऑल्सो वी कैन कम अप विद। दूसरा एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट हो गया, फिर आपका हो गया इकोनॉमी।
these three components are mostly current oriented, तो इनको आपने PT 365 से बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये चीज़ें आपने फोकस करनी है। इसके अलावा बाकी PTs भी पढ़नी है आपने, read others as well, but focus on these ones. So I think this will give you a rough idea how to approach. तो अगर देखिए अभी अगले 40 डेज में नेक्स्ट I would suggest next 40 days you complete one revision of the entire syllabus. एक बार आपने syllabus complete करना है 40 days में, उसके बाद next आप कीजिए next 30 days में, फिर next 30 days में एक बार ख़त्म करिए, and last 20 days में quick revision. उसमें बहुत ज़्यादा quick revision करनी है, तो 3 revisions हमारा टारगेट है, एटलीस्ट 3 revisions हमने करनी है, ठीक है। और जिन्होंने अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन्होंने थोड़ा सा सिलेबस पढ़ लिया है, तो वो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs को एनालाइज करें, इसके साथ साथ एटलीस्ट आपने 2017 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस को आपने एनालाइज करना है। इसके लिए मैं भी एक सीरीज़ लेके आऊँगा, आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा। तो PYQs आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं कुछ दिन में आता रहूँगा। आई विल स्टार्ट विद 2023 से हम स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड्स में हम बनाएंगे। तो इनको क्वेश्चंस को एनालाइज करके किस तरह के सवाल आ रहे हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए, विदाउट नॉलेज हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट का सवाल आता रहता है कि सर मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए। तो देखिए टाइम अभी 90 दिन में आपको पढ़ना भी है और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो आई वुड सजेस्ट अभी आप नेक्स्ट 40 डेज़ में अगर आप क्या करें, नेक्स्ट 30 डेज़ आप 2 मॉक टेस्ट वीकली लगाएं, 2 मॉक टेस्ट पर वीक, ठीक है। देन यू कैन इंक्रीज इट टू 3 पर वीक एंड देन ग्रेजुअली डिपेंडिंग अपॉन। तो रफली अराउंड 30 मॉक टेस्ट आपको लगा लेने चाहिए मुझे लगता है। ऑल्दो वो क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होंगे, बट आपको एक टाइम मैनेजमेंट की और वो सब प्रैक्टिस आपको आ जाएगी। तो देखिए आइडिया आज की वीडियो का यही था कि आपको थोड़ा सा जो अप्रोच हमें कैसे करनी है प्रीलिम्स को अगले 90 दिन के अंदर, किन किन सेक्शंस को हमने ज़्यादा फोकस करना है वो भी हमने देखा। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि आपको अपना टाइम टेबल किस तरह से अगर बनाना है, और दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs एंड फोकस ऑन, हाईलाइट इज फोकस ऑन one book per subject and highlight is 3 revisions, 3 revisions आपने करनी है। तो दिस इज गोना बी योर लिटिल बिट। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ थोड़े डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं जो एड्रेस नहीं हो पाई हैं, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो बिकॉज आई वाज कॉट अप विद सम थिंग्स, सो आई प्रॉमिस्ड यू आई विल कम विद अ वीडियो, सो आई हैव मेड दिस वीडियो। तो आइडिया यही है कि आप अपना थोड़ा सा इस चीज़ को देखें, इसमें आपके डाउट्स कुछ रिजॉल्व नहीं हुए मेंशन करें, वी विल ट्राई टू एड्रेस योर डाउट्स, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। और दूसरा एक तो जो टॉपिक्स पे वीडियो, और दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल के लिए भी कुछ आई माइट प्लान टू कम अप डेली एडिटोरियल एनालिसिस, सो आई विल ट्राई टू कम अप विद दैट सीरीज एज वेल। सो प्लीज़ लेट मी नो you in which areas you need more assistance, and that's all for this. Thank you so much. I wish that you all are preparing well and you don't get distracted. If you have any doubts, any queries, you can contact on my Instagram handle Navjot Singh _IV, okay, or email, you can email us on rockin2011@gmail.com। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लीजिए अगर कुछ डाउट्स हैं, इंडिविजुअल क्वेरीज हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और हम एक सेशन प्लान कर सकते हैं। सो विशिंग यू वेल गाइस, थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड, नेवर बैक डाउन फ्रॉम योर चैलेंजेस, और बस लगे रहिए
90 days are more than good if you sincerely put in the effort. I wish you well. Thank you so much, friends. Jai Hind.